Welcome students of class 9th. Today we are going to discuss the first very chapter of chemistry, that is matter in our surroundings. Matter in our surroundings. So first of all, what do you mean by chemistry? Chemistry, it is a branch of science which deals with the study of structure, composition and properties of matter. And what do you mean by matter then? So matter is nothing but anything which possesses mass. That means which occupies space, which offers resistance, and which can be felt by one or more of our senses. Anything that has certain mass. For example, tree, apple, any kind of fruit, animal, car, house, air, stone, human being, water droplets, clouds. So all these things composed of matters. Even the sun is made up of matter. So everything which occupies certain space in this universe are composed of matter. कहने का मतलब जो भी चीजें जगह कवर करती हैं या उनका कुछ मास होता है वो सब किस कैटेगरी में आती हैं? मैटर की कैटेगरी में आती हैं. लेकिन अब जैसे सन से जो रेज हम तक पहुंचती हैं, जो सनलाइट हम तक पहुंचती है, अब उस सनलाइट का कोई मास नहीं है, तो जो सनलाइट है वो क्या है? वो मैटर की कैटेगरी में नहीं आएगा. यानी कि मैटर की कैटेगरी में वही चीज आएंगी जिसका अपना कुछ मास होगा और जो कुछ स्पेस कवर करती है. ठीक है. क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स. तो मैटर्स आर इन एंशिएंट पीरियड they are classified on the basis of 5 elements and they are also known as Panch Tattva. For example, fire, earth, sky, air and water. तो जो हमारा पुराना जो एंशियंट जो हमारे सिविलाइजेशन में जो हम पढ़ते आ रहे हैं उसमें जो एलिमेंट्स हैं उसको पंच तत्व के हिसाब से बांटा गया था. अग्नि, पृथ्वी, आकाश, वायु और जल. तो ये तो वो तरीका है जो हम पहले से सीखते और सुनते आ रहे हैं. लेकिन जो हमारा जो नया है, जो अभी डेवलप किया है एज पर मॉडर्न साइंटिस्ट, द मैटर इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, that is physical classification and chemical classification. So in physical classifications they are further divided into 3 categories: solid, liquid and gas. Whereas in chemical classification they also divided into 3 categories: elements, compounds and mixtures. But in this chapter we are going to discuss only the physical classifications, that is solid, liquid and gases. So these solid, liquids and gases, here are some examples. For example, hat, pencil, table, bicycle, computer, apple, tree, all these things comes under solids. Solids means which have certain definite shape and size. They have certain definite shape and size. So they are categorized as solids. Whereas in liquids, for example, milk, soft drink, anything that flows, so these comes under liquids which do not have a specific shape and size. And the third one is gases. For example, wind, fog, steam, air, so they comes under gaseous form. So there are basically 3 physical types that we are going to discuss in this chapter: solids, liquids and gases. Now the physical nature of matter. Physical nature of matter. तो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इसमें मैटर के बारे में.
तो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है कि पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर, कि मैटर जो है वो पार्टिकल से बना है। किससे बना है? पार्टिकल से बना है, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना है। ठीक है ना? तो इसको कैसे समझेंगे हम कि मैटर इज नॉट कंटिन्यूअस बट इज पर्टिकुलेट इन नेचर, दैट इज इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, कि मैटर जो है वो पार्टिकल से बना है। तो इसको समझने के लिए देख लीजिए, एक एग्जांपल लेके चलते हैं हम, कि हम थोड़ा सा क्या करते हैं, सोल्ट हम मिक्स करेंगे वाटर के अंदर। तो सोल्ट जो है वो कंप्लीटली जब उसको स्टेयर करते हैं तो कंप्लीटली मिक्सअप हो जाता है वाटर में। क्लियर है? तो व्हेन वी डिसॉल्व सॉल्ट इन वाटर, द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ वाटर, कि जब हम सोल्ट को मिक्स करते हैं वाटर के अंदर स्टेयर करने के बाद, तो जो सोल्ट है वो टोटली जो है इनविजिबल हो जाता है, हमें दिखता भी नहीं, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है पानी के अंदर। यानी कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है उसके बीच में कहीं जाके वो सेटल डाउन हो जाता है। तो इससे हमें क्या चीज़ें हम ऑब्जर्व कर पाते हैं कि वाटर लेवल इज कांस्टेंट, कि वाटर लेवल जो है वो फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता। सॉल्ट स्प्रेड्स थ्रू आउट वाटर, और जो सॉल्ट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है ना? ऐसे नहीं कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, वो बराबर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है पानी के अंदर। सॉल्ट स्टेज इन स्पेस बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, और सॉल्ट के जो पार्टिकल्स हैं वो कहाँ रहते हैं? वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है उन स्पेस में जाके वो सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है ना? तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि सॉल्ट जो है या कोई भी मैटर जो है वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना है। ठीक है ना? और ये पार्टिकल की साइज भी बहुत छोटी है, तभी तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के उनके बीच में जो स्पेस थी उसमें जाके सेटल हो गया। ठीक है ना? तो कहने का मतलब पार्टिकल से बना है और पार्टिकल्स की साइज भी बहुत छोटी है। तो सेकंड कैटेगरी यही कहती है कि द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, कि मैटर की साइज क्या होगी। तो मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स, तो मैटर जो है वो पार्टिकल से बना होता है और पार्टिकल्स की साइज भी क्या है? एक्सट्रीमली स्मॉल है, बहुत छोटी होती है। फॉर एग्जाम्पल हम एक सोल्यूशन ले लेते हैं पोटेशियम परमैंगनेट का KMnO4, और उसको किसी भी वाटर के अंदर 100 ml हमने सिंपल टैप वाटर लिया है और उसके अंदर हम 2-3 ड्रॉप्स जो है पोटेशियम परमैंगनेट के हम डाल देते हैं। तो उससे होगा क्या? उसका कलर एकदम से चेंज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पूरा पिंक कलर है। अब उस सॉल्यूशंस में से आप 10 ml सॉल्यूशन ले लीजिए और फिर आप उसको फ्रेश 100 ml वाटर के अंदर आप उसको मिक्स कीजिए, फ्रेश वाटर के अंदर। तो क्या आप देखेंगे कि उसका भी कलर चेंज हो गया, लेकिन पहले वाले से कंपैरेटिवली थोड़ा सा लाइटर है। ठीक है ना? इसका मतलब कि पोटेशियम परमैंगनेट के जो पार्टिकल्स हैं वो देख लीजिए आप कितने छोटे हैं, मतलब यहाँ पे भी सेटल डाउन हो रहे हैं। फिर इसमें से भी आप 10 ml एक सोल्यूशन ले लीजिए और फिर उसको फ्रेश वाटर में मिक्स कीजिए आप, तो उसमें भी वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन क्योंकि कंसेंट्रेशन धीरे धीरे कम हो रही है, ठीक है ना, तो जो कलर है वो धीरे धीरे लाइट होता चला जाएगा। ठीक है ना? तो एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, तो इससे हम क्या देख पा रहे हैं कि पार्टिकल्स की साइज कितनी छोटी है। ठीक है ना? विद एवरी डाइल्यूशन दो द कलर बिकम्स लाइट इट इज स्टिल विजिबल, तो हर एक बार जो हम डाइल्यूट कर रहे हैं तो हम क्या देख पा रहे हैं कि कलर तो लाइट हो गया है, लेकिन अभी भी कलर हम देखते हैं, मतलब कलर तो महसूस हो ही रहा है ना। जैसे इसमें ये डार्क पिंक है तो ये लाइट पिंक है, तो है तो पिंक। ठीक है ना? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स इसमें भी हैं, जिस वजह से इसका कलर चेंज हुआ। ठीक है? तो इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं कि ईच क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इज मेड अप ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, कि जो पोटेशियम परमैंगनेट के सिंगल क्रिस्टल भी जो है वो भी किससे बना है? बहुत ज्यादा स्मॉल, ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना है। ठीक है ना? तो ऑन डाइल्यूटिंग द सोल्यूशन दीज पार्टिकल्स डिवाइड एंड गेट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सोल्यूशन, और जैसे से हम इसको कंटिन्यूसली डाइल्यूट करते हैं ये पार्टिकल्स जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते चले जाते हैं। ठीक है? तो इसमें एक चीज नोट कीजिए आप कि ड्यूरिंग दिस डिवीजन ए स्टेज इज रीच्ड व्हेन द पार्टिकल्स कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड
सो द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। तो अब आप एक चीज देखिए कि हम कब तक इसको डाइल्यूट करें कि ये कलर चेंज, मतलब ये चेंज होता रहे कलर। तो एक स्टेज ऐसी भी आएगी कि जब हम कलर चेंज होना बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब कि पार्टिकल्स की साइज छोटी है, लेकिन यहां पे भी लिमिटेशन है कि एक लिमिट से ज्यादा छोटी नहीं हो सकती। तो जैसे नॉर्मली एक एटम, ठीक है ना, एटम की साइज जो है कितनी है, 10⁻⁻15 मीटर है। इससे छोटा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर चीज किससे बनी है, एटम से बनी है, ठीक है ना। तो ये अल्टीमेटली उसकी साइज है कि, ठीक है ना, कि मैटर की साइज जो है हम कहते हैं कि बहुत छोटी है, लेकिन कितनी छोटी है, इट इज अबाउट ए साइज ऑफ एन एटम। क्लियर है। नेक्स्ट, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, उनके बीच में स्पेस होती है, ठीक है ना, उनके बीच में क्या होती है, स्पेस होती है। तो ये देखिए कि व्हेन वी मिक्स सोल्ट विद वाटर, जब हम वाटर में सोल्ट मिक्स करते हैं तो हमने क्या देखा था पीछे, कि जो वाटर लेवल है वो कांस्टेंट रहता है, द वाटर लेवल रिमेन्स कांस्टेंट। दिस शोज दैट देयर इज एनफ स्पेस इन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स इन विच द सोल्ट पार्टिकल्स सेटल डाउन। तो इससे हम क्या देखते हैं कि जो क्योंकि वाटर का लेवल तो बढ़ नहीं रहा है, जब हम वाटर के अंदर सोल्ट को मिक्स करते हैं तो वाटर का लेवल तो बढ़ नहीं रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो गैप है, उस गैप में जाके वो सोल्ट जो है सेटल डाउन हो गया। इसी वजह से उसका जो है वॉल्यूम बढ़ता नहीं है वाटर का। तो दीज स्पेसेस आर ऑल्सो नोन एज इंटर पार्टिकल स्पेसेस, और ये जो स्पेस होती है बीच में उनको हम क्या बोलते हैं, इंटर पार्टिकल स्पेस बोलते हैं। सिमिलरली अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट का केस देखें जो हमने पानी के साथ मिक्स किया था, तो जैसे ये पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स हैं, इसकी साइज थोड़ी बड़ी है, और ये मान लीजिए वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इसकी साइज थोड़ी छोटी है। तो जब हम मिक्स कर देंगे तो ये देखिए आप, इस तरीके से पैटर्न आता है, ठीक है ना, कि जो उनके बीच में इंटर स्पेस होती है वहां पे जाके सेटल डाउन हो जाता है। तो डायग्राम शोइंग इंटर पार्टिकल स्पेसेस एंड इंटर मिक्सिंग ऑफ टू मैटर्स, यानी कि मैटर के बीच में स्पेस होती है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं कि मैटर 3 कैटेगरी में हम डिवाइड करें, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड्स के केसेस में जो इंटर पार्टिकल गैप है वो क्या होगा, कम होगा, एज कंपेयर टू लिक्विड थोड़ा ज्यादा होगा, और एज कंपेयर टू गैस का थोड़ा सा और ज्यादा होगा। यानी कि जो पार्टिकल्स के बीच में गैप है वो गैसेस में सबसे ज्यादा होंगे, उससे कम लिक्विड में होंगे, और उससे कम सॉलिड में होंगे। क्लियर है कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स है वो थोड़े से टाइटली पैक्ड होंगे एज कंपेयर टू लिक्विड, और लिक्विड के थोड़े से टाइटली पैक्ड होंगे एज कंपेयर टू गैसेस। क्लियर। फोर्थ कैटेगरी की, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, कि पार्टिकल जो होते हैं मैटर के वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं, ठीक है ना। तो गैस का तो हमें समझ में आता है, गैस पार्टिकल्स तो आप बता दोगे सर कि गैस पार्टिकल्स तो हम कह सकते हैं कि कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, ठीक है ना, जैसे ये देखिए। लेकिन ऐसे ही लिक्विड में भी होता है, और ऐसे ही सॉलिड में भी होता है, सॉलिड के पार्टिकल्स भी कंटिन्यूसली मूव करते हैं, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि वहां पे इंटर गैप जो है पार्टिकल्स के बीच में वो बहुत कम होता है, तो ये जो मूवमेंट होती है वो बहुत स्लो होती है एज कंपेयर टू गैसेस के बीच में पार्टिकल्स के जो गैप होता है वो ज्यादा होता है, तो इसलिए वहां पे मूवमेंट ज्यादा नजर आती है। तो इस चीज को कैसे समझोगे आप कि पार्टिकल्स जो है कंटिन्यूसली मूव करते हैं, इसको कैसे समझोगे कि मान लीजिए आप एक अगरबत्ती ले लीजिए, इंटेंस स्टिक, इंसेंस मीन्स विच हैज ए वेरी हाई फ्रेगनेंस, बहुत ज्यादा जिसकी तीखी खुशबू होती है, वो आप कोई अगरबत्ती ले लो, ठीक है ना। और उसमें हम 2 केस करके देखेंगे। एक, व्हेन द अगरबत्ती इज अनलिट, जब अगरबत्ती को हमने जलाया नहीं है, बंद है, तब क्या होगा, उसकी स्मेल आएगी आपको। तब उसकी स्मेल लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उसके पास जाना पड़ेगा। देन टू स्मेल इट वी हैव टू गो वेरी क्लोज टू द स्टिक, आपको उस अगरबत्ती के पास जाना पड़ेगा उसकी खुशबू लेने के लिए, जब हम अगरबत्ती को जलाते नहीं है। दूसरा केस है कि व्हेन द अगरबत्ती इज लाइटेंड, जब हम अगरबत्ती को जला देते हैं तब आपको उसके पास जाके उसकी खुशबू लेने की जरूरत नहीं है, आप कहीं पे बैठे हो, अगर आप दूर भी हैं तो भी उसकी खुशबू आप तक पहुंच जाएगी। तो देन वी कैन गेट द स्मेल व्हाइल सिटिंग एट ए डिस्टेंस फ्रॉम द स्टिक। तो अगर आप दूर भी हो तब भी आपको उसकी स्मेल आ जाएगी। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर नॉट स्टेशनरी,
कि पार्टिकल्स की जो मैटर है वो स्टेशनरी नहीं है, दे आर कंटिन्यूसली मूविंग, ठीक है ना। दे हैव सम काइनेटिक एनर्जी विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, मतलब किसी भी पार्टिकल की मोशन के हिसाब से जो एनर्जी आती है उसे हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी उसमें ज़्यादा होती है, और काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। तो पहले वाले केस में क्या था? जब आपकी अगरबत्ती बंद थी, हमने उसको जलाया नहीं था, तो उस केस में टेम्परेचर क्या था? कम था, टेम्परेचर 0 था। तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी भी क्या थी? कम थी, ठीक है ना। और इसीलिए आपको उसके पास जाके उसको सूंघना पड़ा था, मतलब उसकी स्मेल अगर आपको लेनी है तो उसके पास आपको जाना पड़ा था। लेकिन दूसरे केस में क्या था कि जब हमने अगरबत्ती को जला दिया तो उसका टेम्परेचर बढ़ गया। तो टेम्परेचर बढ़ गया तो जो अगरबत्ती के जो पार्टिकल्स हैं जो जल के निकले हैं बाहर, उनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या है? ज़्यादा है, ठीक है ना। तो जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा दूर तक ट्रेवल कर जाते हैं, ठीक है ना, ज़्यादा दूर तक ट्रेवल करेंगे, और इसीलिए हम दूर बैठे हुए भी जलती हुई अगरबत्ती की खुशबू को महसूस कर सकते हैं, उसको स्मेल कर सकते हैं। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो मैटर के पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूसली क्या करते हैं? मूव करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी आती है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। इसको कैसे समझोगे आप? तो इसमें एक एग्जांपल हम लेते हैं, मतलब 2 बीकर ले लिया हमने, ठीक है ना। टेक 2 ग्लास बीकर्स फिल्ड विद वाटर, दोनों में हमने वाटर भर दिया। एड ए ड्रॉप ऑफ ब्लू इंक इन वन बीकर एंड ए ड्रॉप ऑफ हनी इन अनदर बीकर। तो एक बीकर में तो आप इंक की एक बूंद डाल दो और दूसरे में आप हनी की एक बूंद डालो। आप क्या नोटिस करोगे कि जिसमें आपने इंक डाली थी वो रैपिडली मिक्सअप हो गई। क्या ऑब्जर्व किया हमने? द इंक मिक्सेस रैपिडली वेयर एज हनी टेक्स टाइम, कि जो इंक है वो जल्दी से घुल जाती है। तो पूरा अगर ब्लू इंक है तो पूरा वाटर जो आपका ब्लू कलर का हो जाएगा और बहुत स्पीड से हो जाता है। लेकिन जब आप हनी की बात करते हो तो हनी पानी के अंदर मिक्सअप होने में टाइम लगता है, उसको एकदम से मिक्स नहीं हो पाता हो, ठीक है ना। तो इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग कंटिन्यूअसली बट देयर स्पीड्स आर डिफरेंट, कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो कंटिन्यूअसली मूव तो करते हैं लेकिन उनकी स्पीड अलग अलग है। तो इंक वाले केस में स्पीड ज़्यादा है और हनी वाले केस में स्पीड क्या है? कम है। और ऐसा क्यों है? बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ इंक इज वीक, कि जो इंक के जो पार्टिकल्स हैं, इंक जिस मैटर से बना है उसके जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत कम है, और इसी वजह से पानी में डालते ही वो बिखर जाता है, ठीक है ना। लेकिन जो हनी जिस पार्टिकल से बना है उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, और इसी वजह से वो फैलता नहीं है, बिखरता नहीं है, स्प्रेड आउट नहीं होता, उसको टाइम लगता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, कि पार्टिकल्स जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं दूसरे को। The particles of matter have certain force of attraction with them, between them, which keeps the particles together। और ये जो force of attraction है ना, किसी भी मैटर के अंदर जो particles होते हैं उन particles के बीच में जो force of attraction होता है उसी की वजह से उसकी जो shape होती है वो बनी रहती है, डेफिनेट shape रहती है और उसके अंदर एक मजबूती आती है, ठीक है ना। आपने देखा होगा चौक, तो चौक की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है। अब इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, ज़्यादा स्ट्रोंगली पैक्ड नहीं होते, इसलिए वो आराम से टूट जाता है, ठीक है ना। अगर हम आयरन की बात करें, आयरन रोड की बात करें, तो इसके पार्टिकल्स भी टाइटली पैक्ड हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है तो इसको तोड़ने में हमें टाइम लगता है। सबसे ज़्यादा टाइम लगता है गोल्ड के केस में, इसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं। रबड़ के केस में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं है, अगर आप फोर्स लगाओ तो इसकी शेप आप इजीली चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। तो सब मैटर के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, लेकिन जो स्ट्रेंथ है इस अट्रैक्शन के, भाई कितना ज़्यादा होगा कितना कम होगा, वो डिपेंड करता है मैटर टू मैटर। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स डिफर्स फ्रॉम मैटर टू
मैटर, मैटर टू मैटर डिपेंड करेगा। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मैटर एंड ऑन द इंटर पार्टिकल स्पेसेस। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो किस पे डिपेंड करता है? एक तो मैटर किस नेचर का बना है, जैसे गोल्ड है या आयरन है या चौक है या रबर है, तो सबका अलग अलग है। एंड द इंटर पार्टिकल स्पेस, और इनके बीच में स्पेस कितनी है। तो गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब फोर्स ऑफ इंटर पार्टिकल स्पेस जो है बहुत कम है, तो इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। जबकि चौक के अंदर क्या है कि जो इंटर पार्टिकल गैप है वो बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम है इसमें। ठीक है ना। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम किस में होगा? गोल्ड में, सिल्वर में। इसी तरीके से सबसे कम किस में होता है? गैसेज में होता है। ठीक है ना, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, और लिक्विड में तो इंटरमीडिएट रहेगा। क्लियर है। तो अब इसको राउंड अप करते हैं, जो अब तक हमने पढ़ा है रिकैप कर लेते हैं इसको। क्या क्या हमने पढ़ा कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, मैटर जो है पार्टिकल से बना है। पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, और पार्टिकल्स के बीच में क्या होती है? स्पेस होती है। पार्टिकल्स आर मूविंग कंटिन्यूसली, और ये जो पार्टिकल्स हैं कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, और ये जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच।